Hello everyone. This is the subject of the engineering mechanics. It is helpful for the BTech students, diploma students, and as well as those who are preparing for the GATE or else GPSC exams. Okay, तो सबके लिए ये important है. Let us start with the unit number 1, introduction part of the engineering mechanics. In this case, first, this is the part 1. In that case, I'll cover the theory part, and the part 2 that is related with the MCQ and its explanation. So very first thing comes in our mind that what do you mean by mechanics? Mechanics क्या होता है? Mechanics, that is the branch of a science and in which that is deal with the two things, state of the rest or a motion of the particles and the bodies under the action of forces. कोई एक स्टेबल कंडीशन है, यहाँ पे एक स्टेटिक ऑब्जेक्ट है. ये स्टेटिक का मतलब क्या होता है? इट इज इन द रेस्ट कंडीशन. ओके, तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, आइदर इन दिस डायरेक्शन और इट इज इन दिस डायरेक्शन और इट इज इन दिस डायरेक्शन, ओके, जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोड अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, और वो फोर्स की वजह से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो हम ऑब्जर्व करते हैं इन दिस ब्रांच. So mechanics that deals with the state of rest or the motion of the particles and the bodies under the action of forces. Force और its application, ये दोनों की वजह से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, whether the object is in a state condition, rest condition or it is in the moving condition. इंस्टेड ऑफ दिस रेस्ट कंडीशन, अगर वो मूविंग कंडीशन में है और वो मूविंग कंडीशन के दौरान अगर हम वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एडिशनल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वहां पे उसकी जो मूवमेंट है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, दैट ऑल द थिंग्स वी आर ऑब्जर्विंग इन दिस पर्टिकुलर ब्रांच. अप्लाइड मैकेनिक्स, the approach is to study the systematically the law of the mechanics and their applications to the engineering problems. Applied mechanics, applied, the name itself indicate that we are going for the application work. So first of all, our task is to learn the different law of mechanics and their application. First of all, understand what are the statement of the law, what do you mean by that particular law, and then how can we apply that particular law for the uh, solving the engineering problems. सो अप्लाइड मैकेनिक्स में हम क्या चेक करते हैं? अप्लाइड मैकेनिक्स एक ऐसा अप्रोच है जिसमें हम सिस्टमेटिक वे में डिफरेंट लॉ ऑफ मशीन्स को स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं एंड उनकी जो एप्लीकेशन से इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हम ट्राई करते हैं. नेक्स्ट थिंग इज द फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स. मैकेनिक्स दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. मेनली वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सेकेंड वन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थर्ड वन दैट इज रिलेटेड विद द फ्लूइड मैकेनिक्स. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ रिजिड बॉडी के साथ डील करते हैं. दैट मीन्स द पर्टिकुलर रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है कि वो एक फिक्स है उसका, दैट मीन्स कि वो एक फिक्स कंडीशन में है. ओके, उसके बाद वो रिजिड बॉडी में हम क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं और वो फोर्स की वजह से उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, दैट वी आर नोटिसिंग. That branch is called as a engineering mechanics. Next one, that is the mechanics of deformable bodies. Deformation आ जाता है. Whenever we are applying the force to the specific body, at that time we can get certain deformation, certain deform shape हमें मिलता है. That entire things is related with the strength of material.
And the third branch, that is called as a fluid mechanics. Fluid that is in the moving condition or it is in the fixed static condition. एक आपने एक कंड्यूट रखा है और वो कंड्यूट में वाटर या फ्लूइड को स्टोर करके रखा है, और एल्स द वाटर इज इन मूविंग कंडीशन. ये दो पर्टिकुलर सिचुएशन में हम फोर्सेस अप्लाई करते हैं और फिर हम उसका नेचर चेक करते हैं कि क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं. सो दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज अ फ्लूइड मैकेनिक्स. So mechanics that have a three particular branches. One is engineering mechanics, second one is strength of material, and the third one is fluid mechanics. Engineering mechanics, that is deal with the rigid body. Strength of material, that is deal with the deformable bodies, and the fluid mechanics, that is deal with the fluids. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक रिजिड बॉडी, इसमें जितने भी हम ऑब्जेक्ट लेंगे वो रिजिड होंगे. रिजिड का मतलब क्या होता है कि जब भी हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे उस टाइम में उसका डिफॉर्मेशन नहीं होगा या उसका डिस्टॉर्शन नहीं होगा. डिफॉर्मेशन मतलब कि वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का शेप है वो चेंज नहीं होगा, डिफॉर्म नहीं होगा. So engineering mechanics, that is defined as the branch of mechanics that deals with the bodies at the rest condition or in the moving condition. हमने जो यहाँ पे rigid body लिए है, जो भी examples हम लेंगे वो all the examples are related with the rigid bodies. rigid body का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने उसके ऊपर forces apply किया वो deform नहीं होंगे, distortion नहीं होगा. वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वेदर दैट ऑब्जेक्ट इट इज इन द स्टेटिक कंडीशन में है या फिर वो एक मोशन में है, मूविंग कंडीशन में है, और एट दैट टाइम वी आर अप्लाइंग द फोर्सेस एंड देन check the nature of that particular movement. Again, the engineering mechanics is divided into two parts. One that is in the rest condition, second one that is in the motion condition. जो रेस्ट कंडीशन में होता है उसको हम बोलते हैं स्टेटिक्स. स्टेटिक्स मतलब बॉडी एट रेस्ट कंडीशन में है. डायनेमिक्स, that is defined as the branch of engineering mechanics that deals with the bodies in the motion. Dynamics is further divided into two parts, kinetics and kinematics. So engineering mechanics है, engineering mechanics जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है. दो पार्ट कौन से? एक जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है रेस्ट कंडीशन में जिसको हम स्टैटिक बोलते हैं, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है डायनेमिक्स जो हम बोलते हैं कि वो मूविंग कंडीशन में है. अगेन ये डायनेमिक्स का दो पार्ट है. वन इज द काइनेटिक्स, सेकेंड वन इज काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स को हम डैश से डिनोट कर सकते हैं. सो वन इज अ काइनेटिक्स, सेकेंड वन इज काइनेमेटिक्स. तो अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है? काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? अल्टीमेटली ये दोनों होंगे मूविंग कंडीशन में. काइनेटिक्स में हम जो भी फोर्सेस वो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका भी स्टडी करते हैं और जो मोशन है उसका भी स्टडी करते हैं. दैट मीन्स यहाँ पे हम फोर्स और उसके साथ साथ उसमें जो भी मोशन में उसको लेके आया है वो पर्टिकुलर फोर्सेस जो रिस्पॉन्सिबल है वो दोनों के बारे में हम स्टडी करते हैं. फोर्सेस that are responsible for the motion and the study of the motion. Both the things are done in the kinetics part. और काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में बात करेंगे. यहाँ पे हम स्टडी नहीं करते, जो भी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए वो हम स्टडी नहीं करते हैं. यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में बात करते हैं और मोशन के रिलेटेड स्टडी करते हैं. सो दोनों ब्रांचेस में मेन डिफरेंस क्या है? काइनेटिक्स में फोर्सेस एंड मोशन दोनों चीजों पे हम स्टडी करते हैं, जबकि काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ मोशन के ऊपर स्टडी करते हैं. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स. और ये दोनों के दोनों किसके पार्ट है? डायनेमिक्स के.
एग्जाम्पल्स ऑफ द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये स्टैटिक कंडीशन में है, दिस वन इज इन मूविंग कंडीशन, पहले यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे था, उसके बाद लेटर पोजीशन पे यहाँ पे है, दैट मीन्स कि वो मूविंग कंडीशन में है. दैट पार्ट इज रिलेटेड विद द डायनेमिक्स. नेक्स्ट ब्रांच दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल. Strength of material is basically deal with the deformable bodies. That means deformable bodies होने के लिए जो भी हम forces apply करते हैं, that all the study will do in this specific branch. Strength of material is defined as the branch of mechanics that deals with the deformable bodies and the forces acting on it. जो भी डिफॉर्मेबल बॉडीज है वो, और उसके ऊपर जो भी हम फोर्सेस अप्लाई करते हैं, वो पर्टिकुलर उसके बारे में हम स्टडी करते हैं इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. इन दिस ब्रांच द बॉडीज आर कंसिडर्ड एज अ डिफॉर्मेबल बॉडीज and the studies are carried out to understand and calculate the types of the deformation characteristics of the bodies when acted upon by the force. That means कि एक particular body है, डिफॉर्मेबल हो रहा है, उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, और वो particular body में कौन से फोर्सेस अप्लाई होते हैं, वो फोर्सेस का कैलकुलेशन कैसे है, देन फोर्सेस अप्लाई करने के बाद क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं, चेंजेस लाइक उसका शेप चेंज हो रहा है, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है. तो जैसे हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया उस टाइम पे वो पर्टिकुलर बॉडी में उसका शेप चेंज हो रहा है या उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिफॉर्मेबल. सो ये हम चेक करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में. Fluid mechanics that deals with the various mechanisms involved in the dealing with the fluid. फ्लूइड के ऊपर जो भी फोर्सेस अप्लाई होते हैं और उसके बाद जो मूवमेंट में चेंजेस आते हैं, मोशन में चेंजेस आते हैं, वो हम स्टडी करते हैं इन दिस स्पेसिफिक ब्रांच दैट इज कॉल्ड एज ए फ्लूइड मैकेनिक्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. स्केलर किसको बोलते हैं? जिसको हमें रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए. अ क्वांटिटी which is represented by only magnitude that is called as a scalar quantity. That means हमें मास को रिप्रेजेंट करना है, सो हम केजी में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हमें वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना है तो हम मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इज इनफ टू जस्टिफाई द स्पेसिफिक क्वांटिटी. क्वांटिटी को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड काफी है. वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन. दैट मीन्स यहाँ पे दोनों चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए. सो वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर विथ एन एरो ओवर इट. वेक्टर क्वांटिटी में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें वो डायरेक्शन भी शो करना पड़ेगा कि कौन सी डायरेक्शन में वो मैग्नीट्यूड जा रहा है. एग्जाम्पल्स लाइक वेलोसिटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं. वेलोसिटी दैट इज द मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके यूनिट को, उसके मैग्नीट्यूड को, और इसके साथ साथ हम वो भी रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है. दैट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, पर सेकेंड 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? सो इन दिस डायरेक्शन या इन दिस डायरेक्शन, लाइक दिस. So both the things are required whenever we are representing the vector quantities, direction as well as the magnitude. So in the scalar quantities only the magnitude is required. Vector quantity, magnitude and the direction, both the things are required. Next point is system of units.
सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब कि हम कौन से सिस्टम में यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट. So first thing, that is we can represent it in terms of the FPS system. F stands for foot, P stands for pound and S stands for second. That means कि हम मीटर को मतलब कि डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं हम फीट में, केजी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाउंड में, और सेकेंड टाइम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेकेंड में. दैट इज कॉल्ड एज अ FPS सिस्टम. Second one is CGS. C stands for centimeter, G stands for gram and S stands for second. So that's called as a CGS system. MKS मतलब कि हम लेंथ मेजर करेंगे मीटर में, वेट मेजर करेंगे, मास मेजर करेंगे किलोग्राम में, एंड टाइम मेजर करेंगे सेकेंड में. दिस इज कॉल्ड एज अ MKS. SI units, that is the System International, that is called as a SI units. So these SI units came with the existence in the October 1960 and is officially recognized and is adopted by all the countries of the world. That means कि वो ऐसे units है जो all over the world सारी country में वो acceptable है. It is based upon the 7 basic units or the principal units. सो 7 ऐसे बेसिक यूनिट्स है और प्रिंसिपल यूनिट है जिसको आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी आप उसको यूज कर सकते हो. सो 7 यूनिट्स कौन से है? फर्स्ट वन, दैट इज द मीटर, किलोग्राम, सेकेंड एम्पियर, केल्विन, मोल एंड द कैंडेला. लेंथ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में, करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन, सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी दैट इज द कैंडेला. तो ये जो 7 बेसिक प्रिंसिपल्स है जिसको ऑल ओवर वर्ल्ड में आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसके बेस पे हमने थोड़े से एडिशनल यूनिट्स को डिराइव्ड किया हुआ है. सो दैट यूनिट्स आर कॉल्ड एज अ डिराइव्ड यूनिट्स. सो जो यूनिट्स हमने फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड किए हुए हैं उनको हम बोल सकते हैं डिराइव्ड यूनिट्स. डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ द SI सिस्टम, लाइक various units are derived from the fundamental units to cater the needs of the field or the stream. What are the examples of the derived units? One of the example is Newton, Joule, Pascal and the Watt. So these are called as a derived units जो हमने लिए हैं SI units से. Now next one is a idealization in the mechanics. रिजिड बॉडी हम किसको बोलेंगे? रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो फिक्स रहती है, ओके, उसका शेप साइज चेंज नहीं होता है. दैट इज कॉल्ड एज अ रिजिड बॉडी. डिफॉर्मेबल बॉडी, that means whenever we are applying the external force its shape and size changes. okay, shape और size उसका change हो जाता है जब भी हम forces apply करते हैं तब. so deformable body or the element whose shape and size changes under the application of external force. Certain fundamental principles are there in the mechanics, like the law of parallelogram of forces, law of transmissibility, law of superposition, Newton's law of motion and the Newton's law of gravitation. जैसे मैंने बताया कि मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, जिसमें हम डिफरेंट लॉ है जो मैकेनिक्स के उनको हम स्टडी करते हैं और फिर स्टडी करने के बाद हम ट्राई कर रहे हैं कि उसकी एप्लीकेशन की हेल्प से हम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पाए. One of the law that is related with the law of parallelogram of forces, whenever we have a two force V1 and the V2, ये दो forces एक common point पे जब लगते हैं तो ये point से जैसे आपने एक diagonal बनाया, that diagonal represent the resultant force.
if the two forces are acting simultaneously on a particle, यहाँ पे particle कौन सा है, O particle है, and that are represented in terms of the magnitude and the direction by the two adjacent sides of the parallelogram. एक ये साइड है और ये वाली साइड, दो साइड पे दो फोर्सेस लग रहे हैं और उनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शो किए हुए हैं. तो ये दो फोर्सेस में से जो डायगोनल पास होगा वो डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा इसका रिजल्टेंट आर. दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस. जब भी हमारे पास दो फोर्स है और वो दो फोर्स का हमें अगर रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, सो वी कैन यूज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस. Next one is a law of transmissibility of forces. Transmissibility of forces states that the condition of equilibrium or of the motion of a rigid body will remain unchanged if a force acting at a given point of the rigid body is replaced by a force of the same magnitude and the direction, but acting at a different points provided the two forces have the same line of action. This is very important word, same line of action. That means simple words. यहाँ पे force लग रहा है A point पे. We can shift the force from A to B through the same line of action. मतलब कि यही line of action पे आप force A को ये जगह से यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो. दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेस. This principle states that if a force system is acting on a body is superimposed with the another force system, एक के ऊपर आपने दूसरा सुपर इम्पोज किया हुआ है, एक फोर्स सिस्टम के ऊपर दूसरा फोर्स सिस्टम आपने सुपर इम्पोज किया है. सो दैट सुपर इम्पोज्ड विद द अनदर फोर्स सिस्टम, दैट इटसेल्फ इट इज इन द इक्विलिब्रियम. अगर वो सुपर इम्पोज्ड भी इक्विलिब्रियम में है, then the effect of both the forces system remains as that of the initial force system. जैसे वो इनिशियल सिस्टम में था वैसे ही वो बिहेव करेगा. दैट रिमेन एज इट इज लाइक अ इनिशियल फोर्स सिस्टम. लाइक यहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है. इसके साथ साथ यही लाइन ऑफ एक्शन पे दिस पर्टिकुलर पॉइंट पे 150 न्यूटन ये डायरेक्शन में जा रहा है एंड 150 न्यूटन ये डायरेक्शन में जा रहा है. सो एट लास्ट अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी 100 न्यूटन ही फोर्स लगेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. जब तक हम कोई भी स्टैटिक कंडीशन में है या डायनेमिक कंडीशन में ऑब्जेक्ट होता है, जब तक हम उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई नहीं करते तब तक वो उनकी जो कंडीशन में है वो एज इट इज कंडीशन में रहते हैं. दैट इज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. एवरी बॉडी कंटिन्यूअस इन its state of the rest or the uniform motion unless it is acted upon by some external agency. In other words, if a body is subjected to a balanced set of forces, it will continue to remain in the state of the rest or of the uniform motion. Newton's second law, force is equals to mass into acceleration. The rate of change of momentum of a body performing the motion is directly proportional to the impressed force and the take place in the direction in which the force acts. Newton's third law, to every action there is an equal and opposite reaction. Next one, that is the Newton's law of gravitational force. This law states that
एनी टू मासेस m1 एंड m2, दो मास है हमारे पास, one is the m1, second one is the m2, and that two masses are separated by the distance r, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, that attracts each other with a force directly proportional to their masses and inversely proportional to the square of the distance. That means यहाँ पे force कितना होगा, force is proportional to ये दोनों का multiplication, दो जो मास है उनके multiplication divided by r square. So whenever we are removing this sign, at that time we have to add one constant, that is the g. So g is called as a gravitational constant. So according to the Newton's law of gravitational force, जब भी दो फोर्सेस दो मास होते हैं m1 एंड m2, वो r डिस्टेंस से दोनों सेपरेट हो रहे हैं, तो वो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा होगा, दैट इज directly proportional to the multiplication of that forces divided by square of their distance. तो यहाँ पे जितने बेसिक थियोरी है वो हमने कवर किया रिलेटेड टू द लॉ ऑफ मैकेनिक्स. नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल इंट्रोडक्टरी पार्ट. It is very important to understand the entire subject. Okay, this subject is a combination of theory and the numericals. So I'll try to solve the numerical part also, जिसके हम डिफरेंट कैटेगरीज के न्यूमेरिकल्स लेंगे और फिर उसको कैसे सॉल्व करते वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी. सो प्लीज यहाँ पे एक आप सीक्वेंस मेंटेन कीजिए ताकि आप सब्जेक्ट को थरली पढ़ पाए. यहाँ पे आप कोई भी एक पिकअप करके पॉइंट पढ़ रहे हो तो वो आपको मे बी चांसेस है कि वो आपको समझ ना आए. इसके लिए एक कंटिन्यूटी मेंटेन करिए तो वो बहुत ही फ्रूटफुल वे में आपको ये सब्जेक्ट क्लियरेंस में हेल्पफुल रहेगा. मैं आपको पूरा सब्जेक्ट यही मैथडोलॉजी से एक्सप्लेन करूंगी. लाइक फर्स्ट इज अ थियोरी पार्ट, जितनी भी थियोरी कवर है वो आएगी, उसके बाद उसके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, एंड देन वी गो फॉर द एमसीक्यू एंड इट्स एक्सप्लेनेशन. आई होप द फर्स्ट सेशन इज क्लियर. आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं, सो प्लीज आप मेरी चैनल पे ये वीडियोस अवेलेबल है, प्लीज गो एंड देन चेक आउट. थैंक यू सो मच एवरीवन.